خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کب کب چکر لگاتے ہیں آپ؟ میں جناب ادھر ہی ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, اور صبح 9 بجے سے 6 بجے تک بازار آن ہوتا ہے, تو ہم ادھر ہی ہوتے ہیں. تو بابا جی کہہ رہے تھے کہ اثر کے بعد جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہے, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بازار جیسے صبح سے شروع ہوتا ہے نا, تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھا مٹیریل لے کے جائے, وہ پک اینڈ چوز چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جیسے جیسے پک اینڈ چوز چلتی رہتی ہے تو تھوڑا وہ فرق آتا ہے, بلکہ ریٹ کم ہو جاتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے. لیکن ان کے جو اعتراضات ہیں وہ غلط ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. ارے یہ کہتے ہیں انہوں نے خود خریدے. ہمارا سامنے کمپلیٹ سیل ہے, ٹھیک ہے, اس میں بنی ہوئی ہے, لیکن اس میں تو کوئی نہیں بیٹھا. میں ابھی گیا ہوں, وہ تینوں باکسز خالی تھے اور نہ ہی سیکورٹی پہ کوئی. میں بازار وزٹ کرنے آیا تھا نا, میرے ساتھ سارا اسٹاف تھا, ٹھیک ہے, میں ایک کمپلینٹ لے کے آیا تھا نا, جو کمپلینٹ مجھے ملی میں تو اس کو ساتھ لے کے آ گیا, ہم اس کے موقع پہ ہی حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ جب آپ لوگوں کا وزٹ ہو, میں نے کمشنر صاحب سے بھی یہی بات کی تھی کہ جب حنیف عباسی صاحب آتے ہیں یا کمشنر صاحب آتے ہیں تو تمام پولیس اہلکار آپ لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, کوئی ایک اہلکار وہاں رہنا چاہیے. نہیں, پولیس ادھر ہی ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے, پولیس آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, وہ دیکھیں, میں تھا تب نہیں, ٹھیک ہے, وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہم پولیس ساتھ کے, لیکن میرے ساتھ اپنا گن مین ہے, کوئی پولیس رکھنے کا شوق نہیں ہے. اب وہ ساتھ ساتھ ہم نے بیسیکلی اس لیے 1-2 بندہ زیادہ رکھتے ہیں کہ بعض اسٹال ہم اسی وقت اریسٹ کرنا بندہ, ٹھیک ہے, اس کو فائن کرنا ہے, کسی کو اریسٹ کرنا ہے, کسی کا اسٹال کینسل کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پولیس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اسٹال ہے, لیکن جو پولیس والا ویجیلنس پہ ہے وہ وہیں رہے گا. اچھا, ایک اور لوگوں کو ایشو بھی آیا ہے کہ جو چینی والا ہے وہ بہت لمبی لمبی لائن لگاتا ہے اور دن میں کوئی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, وہ 10 ٹائم نماز پڑھتا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ایک نماز کا ٹائم ہوتا ہے, اسی وقت اس کو ہوتا ہے, اس کے درمیان میں اس بند ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے. تو اگر آپ کچھ ایسا ارینج کر دیں کہ خواتین آتی ہیں تو وہ کافی بزرگ خواتین ہوتی ہیں, بڑا ٹائم لگا کے آتی ہیں, ان کے لیے بزرگ خواتین کے لیے ہم نے سیپریٹ کاؤنٹر بنایا, وہ دیکھیں بزرگ خواتین کے لکھ کے لگایا معذور. لیکن وہاں تو کوئی کرسی نہیں پڑی. کرسی پڑی ہوئی نا, ابھی کسی نے اٹھا کے اٹھا لیتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. چیزیں مل رہی ہیں یہاں الحمدللہ, اچھی چیزیں ملی ہیں, لیکن لوگوں کو تو بہت شکایت ہے. نہیں بیٹا, ہیک کرتے ہیں ویسے تھوڑا بہت. اچھا, ایک اور بات بھی سننے میں آئی کہ جو چیز یہ شاپر بھر کے دیتے ہیں, مطلب اس طرح کا, سوری میں لے رہا ہوں آپ کا شاپر, اگر ناظرین یہ شاپر بھر کے دیا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں آنٹی خراب نکل آتی ہیں. یہ کیسے نکلتی ہیں؟ ابھی یہ دیکھیں, یہ ادھر خراب بھی ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, بیچ میں خراب ہوتی ہے چیزیں. ایک بھی خراب نہیں ہے اس میں. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نرم ہے, یہ بھائی صاحب, یہ خراب نہیں ہے. یہ جو آتا ہے کہنا پکا دے دو, اگر پکا لائے تو کہنا یہ خراب ہے, اگر کچا لائے کہ یہ کچا ہے. اس لوگوں کا ایک زبان نہیں ہوتا ہے, اور مہنگائی کا گھر جانے تک یہ بالکل ختم ہو جائے گا. مطلب ناظرین, ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو آنٹی کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, انہوں نے اسپیشلی ہاتھ کھڑا کیا. ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سچ پر بات کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں, ایسا میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. کیسے ہیں آپ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینکس. ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از, یہ جو رمضان بازار اور اتوار بازار یہ جو بنائے ہوئے, یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. بند کر دینے چاہیے. جی, کوئی میٹرو کے نام پہ لوٹ رہا ہے اور کوئی جناب اپنا یہ رمضان بازاروں کے نام پہ. یہاں آپ کو دیکھیں چیزیں 3rd کلاس قسم کی. اگر آپ کمپیریزن کریں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اسی بازار میں یہ سستا بازار ہے, یہاں آپ چکن کا ریٹ یہ پتہ کریں, وہ 155 روپے ہوگا. 155 روپے یہاں بھی ہے, اور باہر دکان ہے اس پہ بھی 155 ہے. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ یہ سڑا ہوا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. یہ سڑا ہوا ہوتا ہے, یہ سڑا ہوا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. آپ کتنے عرصے سے آ رہے ہیں رمضان بازار میں؟ میرا جب سے شروع ہوا ہم تب سے آ رہے ہیں. چیزیں اچھی مل رہی ہیں؟ نہیں جی, میں نہیں سمجھتا, مہنگی بھی ملتی ہیں, کوالٹی بیکار ہے. تو کیا کرنا اس سے ہم کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی یہ کوالٹی میں فرق ہے. یہ مجھے بتاتے ہیں کوالٹی میں کیا فرق ہے, جو باہر جو ملتا ہے وہ یہاں ملتا ہے, یہاں کیا فرق ہے؟ میں نے ان کی تو سن لوں نا, آپ کی سنوں گا. اچھا, مجھے بتائیں کہ بورڈ لگائے جاتے ہیں سستا ہو گیا رمضان بازار, چیزیں سستی. یہ سب ڈرامے بازی ہے, سب ڈرامہ. یہ سستا ہے شیخ صاحب؟ نہیں سستا. آپ بڑی منڈی چلے جائیں جہاں پہ مین سپلائی ہے, وہاں پہ بھی یہی ریٹ ہے. باہر جو ریڈی والے بیچ رہے ہیں ان کا بھی ریٹ یہی ہے, سیم ہے. ٹھیک ہے. اور چیز میں فرق ہے, کوالٹی میں. یہ دیکھیں نا, کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. یہ کوالٹی اچھی ہے نہیں, تو اچھی دوسرے والی ہے. دوسری والی ہے. تو اتنا بڑا اشتہار کیوں لگاتے ہیں ہم باہر؟ یہ شباز شریف سے پوچھیں, ڈرامہ میں جایا ہوا ہے شباز شریف نے. جی جناب, یہ جب کہ لگے بازار لگے نا ہمارے پاس, کوئی بندہ ثابت کر دے کہ ہم نے یہ مال غلط بیچا ہے, ہم یہ بھی سب لوگوں کو ایسے بانٹ دوں گا. فلموں کی کاسٹ لکھا کرو, جھوٹ گڑبڑ ہوتا ہے. اور خود کو ٹھیک کرو, سب سے پہلے خود کو ٹھیک مال صحیح بیچو. بولو. تم سے پیر رکھڑے میں اس ویلے, سمجھے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. تم سے پیر رکھے. آپ بھی کوآپریٹ کریں گے, وہ بھی کوآپریٹ. دیکھیں آپ ٹوٹل اس نے غلط بات کی, اس کے ساتھ جاؤ. میری بات سنیں, کیا کر رہی ہے؟ اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں, سامنے رہ کے نیچے رکھ کے گندا مال دیکھو. یہ دیکھو, رکو جی, رکو. میں غلط ہوں. 30 روپے کلو سیب کون دے رہا ہے؟ میں غلط ہوں. یہ دیکھو ڈال کے دیں گے. 130 روپے کلو سیب یہ ڈال کے دیں
देंगे? देंगे बिल्कुल, और आप करें उधर जाए शिकायत करें तो वो शाम को थैलियां भर के ले जाते हैं। मैं तो गलत हुई ये भी गलत है। नहीं, मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि हम अपनी आपकी मर्जी से आप उठाएं, वो कहते हैं तो सफार कभी नहीं, ये रख के फिर उसके बाद अगर आपने कच्चा डाल भी दिया ना, देखो ये मेरी बात इनका तरीका क्या है, आप 1 किलो लेंगे ना तो ये 1.25 किलो तोलेंगे, हमेशा ज़्यादा तोलेंगे। फिर आपने गलती से ये 2 डाल दिए ना तो जो ज़्यादा होगा वो बाहर निकाल दें। ये लोग आधा किलो ये इनका है, सबको देख लो, आप खुद खरीद के देख लो। ओहो भाई, ना लड़ो, मेरी वजह से तो ना लड़ो यार, मुसलमान है, ईमान की नहीं आपने नमाज पढ़ो। नाज़रीन, हम रमज़ान बाज़ार में भी गए, वहाँ हमने रेट्स देखे और लोगों के मसाइल भी सुने। यहाँ एक बिल्कुल एक मोहल्ले में एक रेडी बिल्कुल सेपरेट से है, जिसका सस्ते रमज़ान बाज़ार से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ भी वो फ्रूट्स की वो 5-6 आइटम्स हैं जो रमज़ान बाज़ार में बिक रहे हैं, जिन पर लोगों को इशू है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आप बताइएगा कितने रुपए किलो है ये आलू बुखारा? 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो नाज़रीन। और आप इसकी क्वालिटी देखें कि आपको कोई भी आलू बुखारा यहाँ इसमें कच्चा नज़र नहीं आ रहा, अच्छी क्वालिटी का। और रमज़ान बाज़ार में 130 रुपये था, यहाँ 160 रुपये, लेकिन क्वालिटी 4 गुना ज़्यादा बेहतर होगी। केले कितने दर्जन है? केला 100 रुपये दर्जन। रमज़ान बाज़ार में भी लगभग यही रेट था, लेकिन क्वालिटी आप सबके सामने थी, जिस पे सबको शिकायत भी थी। तीसरी चीज़ इनके पास पड़ी है जो कि रमज़ान बाज़ार में भी थी, आड़ू। इनके पास मेरे नज़र में कोई ऐसा आड़ू नहीं है जो अभी तक ख़राब मुझे नज़र आ रहा हो। ये कितने रुपये किलो है जी? ये 120 रुपये। और शायद रमज़ान बाज़ार में भी कि मेरे ख्याल में 120 रुपये ही था शायद, 120 रुपये वहाँ भी था, यहाँ भी वही रेट है। रेट्स में कोई खासा डिफरेंस नहीं है बाहर जो रेडी वाले हैं या लोकल मार्केट हैं, लेकिन आप ये देखिए क्वालिटी में रमज़ान बाज़ार की चीज़ों में और बाहर की चीज़ों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ये कितने में कुर्बानी, कितने में किलो? 160 रुपये किलो। और आम 100 रुपये। नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ चीज़ों के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रमज़ान बाज़ार और इन यहाँ जो रेडी पर चीज़ें मौजूद हैं एक जैसे रेट्स हैं, लेकिन क्वालिटी इन चीज़ों की रमज़ान बाज़ार की चीज़ों से बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक और सस्ता रमज़ान बाज़ार ख़ैबान सर सैयद में मौजूद हूँ, रावलपिंडी में। रावलपिंडी इसलिए बहुत मैंने कोशिश की कि हम रावलपिंडी पे बात करें, क्योंकि मेट्रो का एक बड़ा प्रोजेक्ट इस शहर में जो है अभी कुछ ही दिनों पहले इफ्तिताह हुआ था। क्या इस मुल्क के लोगों को मेट्रो की ज़रूरत है, या इस मुल्क के लोगों को खाने पीने की अशिया साफ़ और सस्ती होने की ज़रूरत है? पिछले रमज़ान बाज़ार में भी हमने जाके बात की लोगों से। इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि आप मुझसे अच्छे से जानते हैं कि क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। पुराना नहीं है, लेकिन रश क्यों कम होगा, लोगों ने आना क्यों छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? शुक्र अल्लाह का। रमज़ान बाज़ार आते रहते हैं जी, रमज़ान बाज़ार आते हैं। आपका अपना स्टॉल तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, आप हमसे अक्सर लोग अपने स्टॉल वाले आके कह रहे थे बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा चल रहा है, बाद में पता चलता है कि उनका स्टॉल था यहाँ पे। खरीदारी की कैसा रहा? रेट्स ठीक है? खरीदारी की, लेकिन अच्छा सौदा नहीं मिलता है। 2 नंबर सौदा है, रेट कम है, रुपया 2 रुपये फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है। और क्वालिटी में क्वालिटी बहुत नाकुस है। तो क्यों इश्तिहार लगाए जाते हैं हर चौक पे? इश्तिहार लगा, ये जो पैसे लगाते हैं, ये अगर बिजली पर लगा दो ये बहुत बेहतर है। नहीं, अगर ये इश्तिहारों के पैसे दुकानदारों पे लगा दें तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जी, आप खुद चेक करें, सामान खुद चेक करें, प्याज देखे, आलू देखे, सेब देखे। सस्ता सौदा है, लेकिन सस्ता सौदा 2 नंबर है, अच्छा नहीं। 1 नंबर सौदा होना चाहिए। 2 रुपये का 3 रुपये का फ़र्क हो और गाह खुशी से सौदा ले। ये तो नहीं है 2 नंबर सौदा ला के 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, क्या फ़ायदा है? इतनी बदतमीजी। ये ताश अभी भी आपके सामने खेल रहे थे। हाँ, मतलब हमने देखा कि मोबाइल पे हाँ जी ताश चल रहा है। ये ताश खेल रहे थे। इनके जो बड़े अफसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको मैंने कहा कि आपका काम है कि कंट्रोल कराएं रेट, तो उन्होंने कहा जा मेरा दिमाग ना ख़राब कर। फिर इधर बदतमीजी करने शुरू हो गए, मैं ऐसे करूँगा। मैंने कहा मैंने कोई चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, तुम आवाम के खादम हो, हमारे पैसे से चलते हो, तुम्हारा काम है। सस्ती नहीं है यहाँ पे चीज़ें कहाँ सस्ती हैं? 12 रुपये इधर लिखा होता है, 20 रुपये उधर लेते हैं। ये ताश खेलते रहते हैं। अफसर इनका जो है वो कहता है मेरा काम ही नहीं। जो कमेटी का बंदा है वो कहता है मेरी जान छुड़वाएं, 21 घंटे मेरी ड्यूटी है, मेरे से नहीं रेट लगते। इसकी देखें ना पहले, ये आपके सामने है, क्वालिटी देखिए उसके बाद बात करें जी। ये क्वालिटी है इनकी। ये जो अभी उधर तकरीरें हो रही थी, ये बात हो रही सारी, ये क्वालिटी चेक कर लें। नाज़रीन, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो रमज़ान बाज़ार में बिकने वाली चीज़ों की ये क्वालिटी है।
मतलब इस क्वालिटी पे अगर चीज़ें बेची जाएंगी बुलाए ना तो उसी को बुलाए, इसकी दिखाएं उसको। ये इतने, अरे एक सेकंड बेटे वो बुला कमेटी वाले वो दाढ़ी वाले मेरे को खड़ा बुलाए, वो आगे बात की थी आपने, तो ये क्वालिटी क्या है? ये सर इस वक्त मैंने नहीं इसको देखा, अभी आया हूँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया था, अब देख रहे हैं इसको, इंशाल्लाह देखते हैं। तो ये क्या बिकेगी? ये क्यों रखे? नहीं, ये नहीं बिकनी चाहिए, बहुत लोग लेके जाएंगे। ये क्यों रखे हैं बेटा आपने? किसके हैं ये उठा लो इसको, जो खराब है उठाओ फौरी तौर पे, जो खराब हो गया उठा लो। एक्शन नहीं होता? एक्शन वो जो इंचार्ज है ना इसके ऑलमोस्ट, वो कौन है? वो तबस्सुम साहब हैं, TOPNC, वो आएंगे, उनको हम कंप्लेंट करेंगे, वो कैंसिल वो कर सकते हैं, स्टाफ वो कैंसिल कर सकते हैं, या इनके खिलाफ जितने भी तरबूज पड़े कोई एक ऐसा तरबूज नहीं जो बेस्ट क्वालिटी का हो। ये भी देख लें, मतलब कोशिश तो करते हैं हम, उनको उठाते हैं। ये उठाओ बेटा, ये नाकिस चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं, इसको तो बड़ा इशूज़ करते हैं। तो इतने शॉपर कहाँ से भरे हैं आप? ये 50 स्टोर से। तो यहाँ रमज़ान बाज़ार से कुछ नहीं मिला? रमज़ान बाज़ार से बैंगन लेने के लिए निकले थे, आप जाके आप आपको दिखाते हैं, टोटल सारे के सारे काने हैं। आए यार, ये गाजर की क्वालिटी कैसी है भाई? ये देखो, वो कहाँ है इंचार्ज साहब हमारे साथ है सर। अब इसमें से अच्छी, ये कितने रुपए किलो दिए यार? 20 रुपए। तुम तो बहुत शोर मचा रहे थे, चीजें अच्छी हैं सर। बाहर आए ना, पता करें, मेरे साथ शॉप पे आए। ये बेटा देखो, क्वालिटी तो देखो ना, क्वालिटी देखो ना। तोड़ों के अंदर जो होती है वो तोड़े खोलते हैं, इससे अच्छी तो बाहर भी नहीं होती। आजकल जो गर्मी का मौसम है, ये सब लोग खड़े हैं ना, आप लोग चीजें रोज खरीदते हैं, आंटी भी खरीदती होंगी। आंटी, क्या इससे अच्छी चीजें बाहर नहीं मिलती? मिलती हैं। नाज़रीन, हमने रमज़ान बाज़ारों पे नज़र डाली। रावलपिंडी शहर में जितने भी बाज़ार थे, हमने कोशिश की कि तमाम बाज़ारों पे जाके जो लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं उन पे भी बात करें, और हुकूमत की तरफ से क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा रही हैं उस पर भी हम बात करें। तो बहुत सारे मसाइल थे जिन पर आप सब लोगों ने नज़र भी डाली, हमने आप तक वो मसाइल पहुँचाए भी सही, लेकिन हमने कोशिश की कि हम मुतलका अथॉरिटीज़ तक पहुँच कर उन मसाइल पर उनसे बात कर सकें। तो हमने राजा हनीफ साहब को जहमत दी है, जो MP हैं मुस्लिम लीग नून के, बड़े यंग MP हैं, जो नौजवान क़यादत की बात इमरान खान करते हैं, और वो कभी कभी भूल जाते हैं कि नून लीग के पास भी ऐसी नौजवान क़यादत है। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। रमज़ान बाज़ार पिंडी में लगाए गए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, कैसे रहे आपका नून लीग की तरफ से? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में नहीं थे, फेडरल में, और पंजाब में थे, पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने लगाए थे, इस दफ़ा फिर लगाए गए। आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है, क्या लगने चाहिए, और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि अब अगर आप गौर फरमाएँ तो सबसे जो स्पेशलिस्ट अगर कोई चीफ मिनिस्टर है रमज़ान बाज़ार के वाले से, वो मैं समझता हूँ कि हमारे CM मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, कि उनका प्रॉपर ना सिर्फ रमज़ान बाज़ार के वाले से, या जो भी आगे कोई त्यौहार आना हो, या रमज़ान शरीफ का महीना हो, या कोई इवेंट्स आने वाला हो, ऑलरेडी उनका वर्किंग जो है पहले कंप्लीट होती है। इसी तरह हर साल की तरह इस साल भी जो रमज़ान बाज़ार है, अगर आप कंपैरेटिवली पूरे चारों सूबों का विज़िट करें, कश्मीर का विज़िट करें, जो बाज़ार आपको पंजाब में नज़र आएंगे सस्ते बाज़ार, इस तरह के पूरे मुल्क में आपको नज़र नहीं आएंगे। इनमें भी हो सकता है छोटी मोटी कमी कुताहियाँ होंगी, लेकिन जिस तरह प्रॉपरली जो बाज़ार बनने चाहिए और जो बनते हैं वो पंजाब में ही बनते हैं। लास्ट ईयर हमारा सबसे जो बड़ा बाज़ार पिंडी शहर में लगता था वो नवाज शरीफ पार्क उसके फ्रंट पे लगता है, लेकिन इस दफ़ा वो चूँकि मेट्रो की वजह से वहाँ स्टेशन बना है तो उस जगह बाज़ार नहीं लगा। एक ये बाज़ार लगाया गया, एक सिद्दीकी चौक में, इसी तरह कमेटी चौक में। तो मुझे याद है कि फर्स्ट रमज़ान से ही लोगों ने जब सौदा लेना शुरू किया अपना रमज़ान के हवाले से, तो हमें पब्लिक की तरफ से फ़ोन आना शुरू हो गए, जिस दफ़ा रमज़ान बाज़ार नवाज शरीफ पार्क के बाहर नहीं लगा तो वो किस जगह लगा है। लोग चाहते हैं कि एक ही जगह, एक ही बाज़ार में जाके तमाम अपनी ख़रीदारी जो है वो मुकम्मल कर लें। उसमें आपको पता है कि बाज़ार में घी भी दस्तियाब है, दालें भी हैं, बोतलें भी हैं, गोश्त भी है, मुर्गी भी है, पूरा मल्टी मतलब तमाम चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल हम करते हैं वो सारी मौजूद होती हैं। फिर आम जो मार्केट का जो रेट है उससे काफ़ी फ़र्क होता है। गवर्नमेंट पंजाब 5 अरब रुपए की सब्सिडी भी देती है, बाज़ारों पे लगाती भी हर साल, तो वो फिर लोग प्रायोरिटी देते हैं कि जाके बाज़ार से एक ही दफ़ा जाके सारा सामान हम खरीद लें। तो अभी भी आप देख लें जिस बाज़ार में आप जाएंगे बड़ा एतराज़ आता है, क्योंकि स्पेशली अगर हम PTI की बात करें तो PTI के आपके जो असम्बली के कोलीग्स दोस्त हैं वो भी हर सेशन में बात करते हैं। नून लीग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बस को कभी मेट्रो बस को जंगला बस कह दिया जाता है, रमज़ान बाज़ार को एक ड्रामा कह दिया जाता है। तो ये जो अपोजिशन का एतराज़ है या PTI के कारकुनान का रमज़ान बाज़ार पर स्पेशली एतराज़ है, क्या ये ठीक है? अपोजिशन का तो काम ही एतराज़ करना है। वो मैं कहता हूँ कि जो क्रिटिसाइज़ करें, हमारी जो खामियाँ कुताहियाँ निकालें, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, तमीरी होनी चाहिए, ताकि अगर हमारी कोई गलती है अगर वो उसको निशानदेही करेंगे हम उससे सीख के उससे में बेहतरी लाएंगे।
अब मेट्रो बन चुका है, बड़ा शोर था, लेकिन आपके सामने है कि लाहौर का भी रिकॉर्ड टूट गया है। 1.5 लाख आदमी डेली जो है वो सफ़र कर रहा है। अब जो मुसाफिर जा रहे हैं 20 रुपये का टिकट लेके, जो उनको रिलीफ मिल रहा है, AC वाली गाड़ी मिल रही है, स्पीडी पहुँच रहे हैं, घंटा 1.5 घंटे की जो मुसाफिर जो है वो कम हो गई है। वो आप उनसे पूछें जो सफ़र करता है वो तो लोग खुश हैं, वो पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है ना। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो पब्लिक को दे रही है। एक आम आदमी जिसने 20 रुपये का टिकट ले रहा है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तो उसने 40 का लेना है या 50 का लेना है। अब 30 रुपये अगर गवर्नमेंट भर रही है तो उसमें शहबाज शरीफ साहब को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम में से किसी पब्लिक का गरीब आदमी जो बैठता है उसी को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अगर रमज़ान बाज़ार की स्पेशली बात करें तो हमने जितने बाज़ार, कुछ 4-5 बाज़ार लगे हैं मेरे ख्याल में, हमने सभी विज़िट किए हैं, तो उसमें पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है। बाहर गेट पे दोनों तरफ में हमने जितने बाज़ार गए वहाँ पुलिस नहीं है। क्या पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया या पुलिस एहलकार ड्यूटी पे आते नहीं है? देखें जी, अपना जो हमारे डिपार्टमेंट है ना पुलिस के, अभी आपके सामने ये भी खड़े हैं, वार्डन की ड्यूटी होती है वो भी खड़े हैं, मार्केट कमेटी का नुमाइंदा मौजूद होता है, सॉलिड वेस्ट का नुमाइंदा मौजूद है, सारे आपके सामने जिन लोगों की ड्यूटी है वो सारे मौजूद हैं। फिर चीफ मिनिस्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके पूरे पंजाब के कमिश्नर साहबान, DC साहबान, AC साहबान, TMOs, MNAs, MPAs तमाम इस काम में इन्वॉल्व हैं। अगर आप इधर सारा दिन रहें तो आप देखेंगे कि मिनिस्टर भी डेली एक चक्कर लगा रहा है, एक वो रिसाइकिल की तरह सारा पूरा पंजाब इन्वॉल्व है इसमें। सारे मिनिस्टर एक बाज़ार का लादा हमारे चौधरी शेर अली साहब उनकी जिम्मेदारी है पिंडी डिवीजन की। कल हमारे जमीन साहब आए थे फूड के जो हमारे खुद कितने, क्योंकि आधा रमज़ान गुजर चुका है, कितने चक्कर लगाया आप? हमने आते जाए, मेरे तो अपने हल्के में है ना, हम इधर से सारा दिन इधर से गुजरे, एक चक्कर लगा लिया, दूसरे बाजार से गुजरे वहाँ चक्कर लगा लिया, हम सारा दिन चलते रहते हैं। आपको क्या ज़्यादा सस्ता सौदा मिलता है या हमारे बराबर ही रेट होते हैं आपके लिए? नहीं, मैं तो जो घर वाले खरीदारी करते हैं रेट जो मार्केट का है वही उसी में मिलेगा, हमें कुछ सस्ता देंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि नून लीग वाले अपने लिए स्पेशल कंसेशन लगते हैं। जी, हमने क्या, हम दिल करते हैं जो गरीब लोगों को उनका इस्तेकाक बनता है उनको दें। अल्लाह का फजल है, हमारा गुजर का तो हो रहा है, हमें चाहिए कि 1 रुपया फालतू दे दें, कम नहीं कराना चाहिए। अच्छा, बाज़ ऐसे बाज़ार भी हैं, क्योंकि हम कल एक बाज़ार में गए थे, कोई सदीकी चौक के पास जो है हॉली फैमिली हॉस्पिटल, वहाँ चीनी कम थी, चीनी ख़त्म हो गई थी। क्या ऐसा सर्कल नहीं हो सकता कि जो रिक्वायरमेंट है मेन चीनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट चीनी पे दे रही है, उसकी जो खपत बढ़ गई है कम रेट होने की वजह से, कि उसकी सप्लाई को मेनटेन किया जाए? इंशाअल्लाह ताला आप यही देखें ना, ये इसकी बाज़ार की कामयाबी है ना, कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था, ये टारगेट हमने फिक्स किया था भाई 5000 आदमी डेली चीनी लेगा या 2000 लेगा, उससे फिगर बढ़ रहा है, तो ये बाज़ार की कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला जहाँ ये कम डिमांड ज़्यादा आ गई है वो हम पूरी कोशिश करेंगे जो तरसील है उसकी मज़ीद इजाफा करके जो लेवल है उसका जो पूरा किया जाए। लोगों की काफ़ी शिकायत हैं, क्योंकि हमने खुद भी ऑब्जर्व किया कि फल बड़े लो क्वालिटी के हैं, सब्जियां बड़ी लो क्वालिटी की हैं। क्या रेट कम रखने की वजह से जो है वो क्वालिटी डाउन हो जाती है या कंट्रोल कर नहीं सकी गवर्नमेंट क्वालिटी को? नहीं, गवर्नमेंट तो मैंने जिस तरह बताया ना कि पूरी मशीनरी का फोकस होता है, पूरे DCO, कमिश्नर, AC साहबान सारे, और जिस किसी का स्टॉल में फ्रूट आप देखेंगे या सब्ज़ी जो मेयार की नहीं होगी वो उसी टाइम हम कैंसिल कर देते हैं, हम फ़ौरन दूसरा बंदा ले लेते हैं। क्वालिटी का तो सारे 10 लोग आते हैं जिनको चेक करते हैं, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं। ये जो सब्सिडी दी गई है 5 अरब रुपए की, इसमें क्या जो लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं उनको भी कुछ सब्सिडाइज किया गया है? जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उनको तो नहीं, ये मार्केट कमेटी का रेट होता है ना, मार्केट कमेटी रेट फिक्स करती है, उनको रिलीफ दिया जाता है, इनको फिर मार्केट से चीज़ें जो है सस्ती मिलती है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास वक्त की बड़ी कमी है, मैं चाहूँगा क्योंकि आप नून लीग के नुमाइंदा हैं, शहबाज शरीफ हमेशा बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा पॉजिटिवली काम करते हैं, क्या उनकी जो काविश है रमज़ान बाज़ार की, मेट्रो की, लाहौर के बाद पिंडी में भी आया, आपने खुद उस सारे प्रोसेस में रहे, अब मुख्तलिफ शहरों में भी लगाया जा रहा है, क्या नून लीग आने वाले जो इलेक्शंस हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन हम सुन रहे हैं कि होंगे, क्या उसमें क्या पोजीशन रहेगी नून लीग की, क्या पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा लोगों की जानिब से? इंशाअल्लाह ताला भी हमारा पिंडी कैंट का रिजल्ट आपके सामने है, 20 में से 20 सीटें एक जमात इस्लामी को मिली है, वो भी वहाँ हमारे 2 कैंडिडेट से, तो वो भी बाद में उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। 20 की 20 सीटें सारी मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग रावलपिंडी जो है, अब मेट्रो बस भी हमारी चल गई है, और यहाँ रावलपिंडी बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी एक बनी है तुर्की अलबराग के तावन से, वो सफाई का काम कर रही है, पूरा रावल टाउन उनके अंडर आ गया। सफाई का ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया पूरे शहर में। डेवलपमेंट के तो करोड़ों अरबों रुपए के हमने काम पहले ऑलरेडी करवाए और मज़ीद करवा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी वजह से ये ऐसे हालात बनेंगे कि हम इलेक्शन बल्दियाती जो है वो लूज़ कर जाएँ। फिर हमारे पास इलेक्टिबल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो पिछले 5-7 दफ़ा जीत चुके हैं ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमने बात की रमज़ान बाज़ार के हवाले से। अब हम हनीफ साहब के साथ ज़रा बाज़ार का विजिट करेंगे और देखेंगे कि लोग किस तरह ख़रीदारी कर रहे हैं। आपको खजूर की क्वालिटी का पता लगता है? हाँ जी, हमने माशाल्लाह मैंने आज भी किया हुआ है और 2 उम्रे भी किए हैं। तो जो सऊदी अरब जाता है उसको बस पता लग जाता है, चल जाता है। ये जो है ईरान की है, कहते हैं ईरान से आई है, देखें बड़ी खूबसूरत खजूर लग रही है।
क्वालिटी वाइज। कितने में केजी है ये 160 kg है। मार्केट में कितनी मिल रही है? ये 200 रुपये की मिल रही है, 180 200। 200 की और यहाँ पे 160 मिल रही है। धनी साहब यहाँ एक कस्टमर भी हैं जो आए हैं, आप इनसे ज़रा पूछें ताकि आपको भी पता लगे आपने क्या खरीदारी की है जी? माशाल्लाह जी टमाटर ले लिया, टमाटर अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, मुतमिन है। ये जो स्टैंड है ये अलग क्वालिटी का है, बाकी मज़े का नहीं है। ये चीज़ से मैं इधर चावल ले लिया, चावल सही स्टैंडर्ड। टमाटर किधर से लिए? 34 रुपये का यहाँ से लिया। तो मार्केट में क्या रेट है? तकरीबन 60 रुपये का रेट है। कितना डिफरेंस आप देखा? इसलिए तो मैं आता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस मुझे मिल रहा है तो ठीक है। मियां साहब को क्रेडिट देना चाहिए। मियां साहब बात सुनो, बाकी तो नहीं है, वही स्टैंडर्ड का नहीं है, उसका तस्वीर स्टैंडर्ड का है, बाकी चीज़ उसी स्टैंडर्ड का नहीं है, सिवाय इसी स्टॉल के। आपके साथ विजिट करते हैं ना, अनिल साहब वैसे हम ये देखें ये देखें सर, ये जो गंदे जो पैर निकालो, और ये कच्चे हैं, सब कच्चे हैं, निकाल दो। फ्रूट्स पे बड़े एतराज़ हैं और सब्जियों पे उनकी क्वालिटी। एक फ्रूट है, फ्रूट सारा ठीक है, एक में 3-4 पीस पड़े। जी नाज़रीन, हमने आज के शो में रमज़ान बाज़ारों में जाके विज़िट किया, वहाँ लोगों को क्या मसाइल थे उस पर बात की, लोगों की ज़बानी उनके मसाइल भी सुने, और आपने कैमरे की नज़र से देखा कि जो चीज़ों की क्वालिटी है वो कुछ अच्छी नहीं थी। गली सड़ी सब्ज़ियाँ, गले सड़े फल, और रमज़ान बाज़ार में लोगों का रश बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों की निस्बत। सो ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि रमज़ान बाज़ार जिस मकसद के लिए इस मुबारक महीने में लगाए गए थे वो मकसद पूरा नहीं कर पा रहे और लोग मुतमईन नहीं हैं। हुकूमत ने जो सब्सिडी दी अरबों रुपए की रमज़ान बाज़ार पे, लगता यह है कि वो सब्सिडी ठीक तौर पे लोगों तक नहीं पहुंच सकी। रमज़ान का बाबरकत महीना है और तमाम लोगों तक, आवाम तक साफ़ और क्वालिटी के हिसाब से अच्छी चीज़ें पहुंचाना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करे कि लोग ठीक तौर पे हुकूमत की दी गई सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकें। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट सदान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।